اگر آپ کو انگریزی فلمیں سمجھنے میں دشواری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ہالی ووڈ فلم کا اختتام آپ کو چونکا دے گا۔ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کسی بھی تو فلم کی شروعات راہیو جانی سے ہوتی ہے۔ وہ سو رہی تھی کہ اس کے پاپا اسے جگانے آئے اور اسے دے دیا۔ جس وقت اب کو صبح کی نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک اسے اپنے اندر درد محسوس ہوا۔ کمرے کے باہر سے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دی جلدی سے نماز چھوڑ کر باہر نکل گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کو اجنبی لوگ مار رہے ہیں۔ وہ اپنے والد کو بچانے کے لیے مجھے مارنے آیا تھا۔ وہ ان لوگوں پر حملہ بھی کرتی ہے کہ یہ آدمی کا کان بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن اب بھی اپنے والد کو نہیں بچا سکا۔ شاید راہیو کے والد واقعی شرمندہ تھے۔ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو بری روحوں میں مبتلا ہے، کہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے رہائی کا داد دیا تھا۔ اس نے اسے غلط سمجھا۔ اس نے سوچا کہ ریحی کے والد راہیو کے والد اسے کالا جادو کہتے ہیں۔ راہیو اب اس کا بھائی مارا گیا تھا۔ وہ اپنی دادی پر رحم کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ جلد ہی گاؤں والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ راہیو کے والد کالے جادو سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ مارا گیا تو گاؤں والے بھی، میں نے 2 سال پہلے اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دی تھی۔ راہیو کے گھر چلانے کا وقت گزر گیا۔ ایک دن وہ کپڑے کی دکان پر کام کرنے لگی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی دادی اس کے والد کے چچا اس سے ملنے آئے تھے۔ اس سے اپنے والد کا پرانا گھر بیچنے کو کہتا ہے۔ راہیو یہ سن کر بہت پریشان ہوا کہ وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ ریحی کو غصہ آیا اور آج تک یہ بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہر کوئی اس کے والد کے بارے میں برا ہے۔ کیوں سمجھتے ہیں اور ان کی جائیداد؟ آپ ان سوالوں کے جواب کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ وہ جواب حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے استاد کے پاس جاتا ہے۔ وہ گھر جاتی ہے اور اپنے والد کو یہاں پاتی ہے۔ ایک عجیب سا لاٹھی نظر آئی جس کی شکل سانپ کی تھی۔ جب اس نے اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ استاد نے آ کر اسے روکا اور کہا، اسے مت چھونا۔ راہیو نے کہا کہ پھر چھڑی میں نے دیکھا اور مناظر فلیش بیک میں چلے گئے۔ وہ مل گیا۔ اس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوئی تھی۔ جب اسے سانپ نے ڈس لیا تھا تو اس کا جسم بہت خراب حالت میں تھا اور اس کی موت بہت ہولناک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استاد راہیو کو کہتا ہے، آپ کا پرانا گھر اب بھی نماز کا کمرہ ہے۔ اب اسے نماز کے کمرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک منظر دکھایا گیا ہے جہاں ایک آدمی کوئی اس کے کندھے پر بار بار نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ 1 بار اور 2 بار اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ اس نے تیسری بار نماز پڑھی اور ڈر گیا۔ وہ جاری رہی اور اچانک یہاں آ گئی۔ روشنیاں چلی گئیں اور دکھایا گیا کہ یہ آدمی اب تھا۔ مرنے والوں کی ارواح کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی آوازیں سن کر وہ شخص رو رہا تھا تو وہ شخص بہت ڈر گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ میں نے اسے توڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہیں، لیکن وہ اس جملے سے ڈر گیا تھا تو وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں باہر راہیو اسے خوفزدہ دیکھتا کیا راہیو واقعی اپنا پرانا گھر دیکھنے کا سوچ رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ دعا تھی، جب جگہ میسر ہوئی تو اس نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں عجیب اس کے ساتھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نماز پڑھنے سے کام فوراً ہو جاتا ہے۔ روشنیاں بجھ جاتی ہیں اور اس کے ارد گرد موت عورتوں کی روحیں اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئیں۔ راہیو چیخنے لگتا ہے، جب میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ ایک پردے میں پھنس گئی اور یہ مناظر یہاں فلمائے گئے۔ وہ ایک بار پھر فلیش بیک میں چلا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کے والد زندہ تھے اور زیر قبضہ لوگوں کی لاشوں سے ثبوت شعاع توانائی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نی نے دیکھا تھا کہ اس کے والد نے اسے کس طرح سنبھالا تھا۔ انسان کی تمام بری توانائی کو اپنے اندر جذب کر لے، اور پھر اس کے منہ سے سانپ نکلا جو اس پوز والے آدمی کے اندر چلا گیا۔ سانپ اپنے منہ کے اندر چلا گیا اور دوسرے سانپ کو مار ڈالا۔ سانپ کو باہر نکالا اور پھر مار ڈالا۔ اب وہ سانپ جو اس کے باپ کے جسم سے نکلا تھا وہ صرف راہیو کو کاٹنے نکلا تھا، لیکن پھر اس کے والد نے وہ سانپ پکڑ لیا ایک چھڑی میں، یعنی وہ چھڑی جو ہم نے دیکھا کہ یہ دراصل ایک طاقتور سانپ تھا۔ شاید اس کے اندر کوئی جادوئی جھنکار موجود ہے۔ مناظر اب حال میں آتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رہائی نماز کے کمرے سے خوف سے نکلتی ہے۔ صبح ہوتے ہی سب کچھ معمول کے مطابق بھاگ گیا۔ میں اپنی دکان پر کام کرتا رہا۔ وہ چلی گئی اور آج اس کی دکان پر مزید گاہک آئے۔ یہ دیکھ کر ساتھ والے دکاندار کو رشک آنے لگا۔ وہ اسے گالیاں اور اس کی تلخ کلامی کرنے لگی۔ راہیو کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ آنکھیں بالکل بند تھیں اور وہ اسے مارنے کے لیے بلی کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس کے ساتھی کے ساتھ لڑائی کافی شدید ہو چکی تھی۔ یہاں کے دکاندار اور لوگ دونوں ہیں۔ وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب راہیو سفید آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دوست لڑکا رات کو ان سب کو بتاتا ہے۔ وہ اپنے گھر چلی گئی جہاں اس کے والد تھے۔ شاید انہوں نے بری روحوں کو بند کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے راہیو کی پرورش کی۔ کر لیا، ٹھیک ہے، آپ ان سب چیزوں سے دور زندگی گزاریں گے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی دادی سے اپنے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں پوچھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس کی دادی نے بھی یہی کہا، بتایا کہ اس کے والد ایول سول سے مدد لیتے تھے۔
और अपना काम करने के बाद उन सबको एक मिल गया। वो मुझे कमरे में बंद कर देता था, इसीलिए वो कमरा अब बदरूहों का घर बन गया है। वो राहियू को दोबारा वहां जाने से भी मना करती है, लेकिन अगर राहियू दोबारा पोज की तरह रहता है, पता नहीं वो वापस इसी कमरे में कैसे आई। वो बाहर पहुंचकर यहाँ आकर देखती है, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ एक और आदमी है। वो आया है, लेकिन यहाँ वो नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है। राहियू को बहुत तकलीफ थी। जब मैंने ये देखा तो अगले ही लम्हे मैंने इसे देखा कि आदमी नमाज पढ़ रहा है। उनके पीछे एक बच्चा लटका हुआ है, इसलिए इसे अब बहुत मुश्किल हो रही थी। वो भी नमाज पढ़ने आई। जब वो नमाज पढ़ रही थी, जब वो पढ़ रही थी तो इसे इसकी बहुत सी कामयाब फिल्में मिली थी। इसने रूह के पांव देखे और बुरी तरह खौफजदा हो गई। इसने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी, गोया नमाज पढ़ने से रूह को तकलीफ होती है। वो सर पकड़े राहियू के सामने बैठी होगी। इसे देखकर राहियू डर गई और पीछे की तरफ गिर गई। वहीं जाता है जहां पहले कई ओवर सोलीज हो चुके हैं। वो काफी देर से लेटी थी और अब मैं इसे पकड़ना चाहता था। मैं उसके साथ बार बार कोशिश कर रहा था। इससे माजी के नज़ारे माजी में आने लगते हैं। इसके वालिद अपनी रूहों के जरिए बच्चे को बचाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसी हालत में आदमी पर रस्में कर रहे थे। वो इसे वहां से और इस वक्त निकाल रहे थे। राहियू आया, रस्म टूट गई और वो सब तमाम रूहों के पास राहियू। और यहाँ एक मोड़ इस बात को जाहिर करता है, राहियू अब उन बुराइयों से वाकिफ नहीं है, लेकिन बचपन से वो रूहों के कब्जे में थी। अब वो फिर से वापस आ गई है। नमाज के कमरे में था और वो नमाज के कमरे में भाग गया, सेशन से अपने घर लुटता है। हम इस हाल में वापस आ गए हैं जहां हमारा जैसे ही वो अपनी दादी के पास आया, इसने सुबह देखा जिस लड़की को इसने मारा था उसकी माँ आई। वो इसे डांट रही थी और उसने अपनी माँ से मुआफी मांगी थी। और यहाँ इसकी नानी इसे सख्ती से मारती है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इससे मना किया था, तुम कमरे में नहीं जाओगे। लेकिन राहियू को अपनी दादी के पास जाना है कि इसे इसका बुरा लगा और अब वो अपनी दादी के पास है। इससे झगड़ा करने के बाद और नमाज के कमरे में वापस चला गया। इस वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। वो एक नया देखती है। वो इसे देखती है कि किसी रूह ने नन्हे राहियू को पाला है और इस रूह की गोद में छोटी सी रिहाई। वो इस बार भी डरते डरते सो रही थी जब वो इस कमरे में आई थी। अगर वो इस कमरे से फरार होने की कोशिश करेंगे, रूहों की दुनिया से बाहर निकलने के बजाय जहां तमाम रूहें हैं, वो फौरन इस पर हमला करने वाली थी। लेकिन इससे पहले किसी ने इसका हाथ खींचा। मैंने इसे बचाया। जब इसे होश आया तो वो था वालिद के उस्ताद के घर और उनके साथ था। यहाँ एक दोस्त थी, इसने अपने पापा की धुनें गिने। उस्ताद इसे बचपन से कहता है, तुम उन बदरूहों के कब्जे में थे और यहाँ आपको थकाने के लिए गुनातूत यानी तुम्हारे पापा के चचा आए, लेकिन ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक है, ये नहीं कर सका। और जब अब घर वापस आए, अपने खुद उन तमाम रूहों को बुलाया। इसलिए मैं इस दिन से अब तक यहाँ हूँ। सर्फ पूरी तरह से उन रूहों के कब्जे में था। इसे बताएं कि आपको अभी भी इसे ठीक करने की जरूरत है। मुझे दिन के लिए अपने एग्जॉस्ट को मुंजमद करने की जरूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रिहाई की हालत जुम की तू रहती है। इसकी सेहत काफी खराब हो रही है। वो खराब होने लगी और अब इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ा। बहुत सी रूहें भी दिखाई दे रही थी। राहियू की दादी भी यहाँ अपने काम की जगह पर है। जब वो जरूरी सामान खरीदने बाजार आई, फिर वो आंटी है जिसकी बेटी को राहियू ने रैप किया। बाजार में खड़े होकर दोबारा मारा गया। वो राहियू की दादी की तौहीन करने लगती है। ये देखकर रहा को पता ही नहीं चला कि इसे क्या हो गया है। अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा होने लगी। ऐसे ही मुंह से सांप निकला, जैसे ये इसके वालिद के जिस्म से निकलता था, और वो सांप ने जाकर इस आंटी को काट लिया। और ये सब हुआ। गांव वालों ने वो मंजर देखा था। अब सब ने महसूस किया, ऐसा लगता था कि ये सब राहियू की दादी ने किया है। अब गांव वाले उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वो तैयार था। इसने आकर सारी सूरत हाल बताई। मैंने इसे संभाल लिया। लेकिन आधी रात को फिर हमें राहियू का एक खौफनाक मंजर दिखाया गया। सांप के जिस्म से वही अजीब तवानाई लड़की के रूप में निकलकर आंटी के पास गई, जो उन तमाम ताकतों ने नानी की तौहीन की थी। गांव वालों का ख्याल था कि उन्होंने मिलकर उन्हें मार डाला, इसलिए नानी ने भी ऐसा किया होगा। गांव वाले इसे सजा देने आए थे। तब भी सर्व ने आकर सूरत-ए-हाल को संभाला और कहा कि अगर नानी इस सब की जिम्मेदार है तो आइए अपनी हकीकी रस्म को आजमाते हैं। इस रस्म के अंदर एक शख्स को जिंदा निकाल लिया जाता है। वो शख्स मुर्दा जिस्म की तरह कफन पहनकर लेट गया। इसे दिया जाता है और वो अपने जुर्म का एतराफ करता है। अगर इसने ये जुर्म किया है तो वो शख्स वही मर जाए, और अगर नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो वो जिंदा रहेगा। क्या नानी इस वक्त ये रस्म अदा करने को तैयार है? वो चली गई क्योंकि इसने ये सब नहीं किया था। अगली रात ये दिखाया गया है कि रियो की दादी वो रस्म भी शुरू हो गई थी, और इसी नमाज के कमरे में रिहर्सल देखने के बजाय मैं यहाँ प्री पढ़ने गया था। बहुत सी रूहें इसे खौफजदा करने लगे, लेकिन आज वो इसके बरक्स खौफजदा नहीं थी। ये वो था जिसने रूहों को चीखने और डराने पर मजबूर किया, क्योंकि वो भी इस वक्त बहुत ताकतवर हो गई थी। इसके अंदर से और यहाँ से एक तवानाई जारी हो गई। हमने देखा कि नानी भी एक मुख्तलिफ शख्स थी। वो रूहों की दुनिया में चली गई, जहाँ वो मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने से बहुत डरता था। जब वो दूसरे से तीसरे पर चली गई, राहियू को कमरे में रूहों के दरमियान बैठा देखा गया।
मैंने ये देखा तो वो खौफ से जोर से चीखा, और यहाँ हकीकी दुनिया में उन्हें जिंदा देखकर अपने होश बहाल हो जाते हैं। सब जानते थे कि वहाँ जो लोग इस आंटी के साथ थे। एक कत्ल हुआ, लेकिन इसके पीछे दादी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित होने के बावजूद नानी भी बहुत डरी हुई थी। इसने गांव में सबको बता दिया। मैंने जाने से पहले जाने का फैसला कर लिया था। वो रिहायशियों से कहती है कि मैं जायदाद में हूँ। इसे अपने वालिद के चचा सतत के हवाले करना। सतत का नाम सुनते ही मैं फिर जा रहा हूँ। राहियू को इतना गुस्सा आया, उसकी आंखें काली हो गईं। किसी ने इसे ठूंस दिया। मैंने ये किया और उसने नानी से कहा कि मेरा वालिद की मौत के पीछे सिंह के अलावा कोई और नहीं है। टूट वो शख्स था जिसने मेरे वालिद को मारने की कोशिश की थी। मैंने खुद इसे काटने की कोशिश की और मेरे वालिद के इंतकाल के बाद में इस रूह से मिला। मैंने इसे संतवट और गांव वालों के साथ देखा था। चचा ने यह भी जमा कराया था ताकि हम वो अजीब सी आवाज हमारे घर से दूर जाना था। मैं कहता हूँ कि गुनाह तो वो है जिसने हमारे वालिद को जन्म दिया। ये आवाज बहुत खौफनाक थी कि नानी इसे अपने कान बंद करने पड़े, और ये सारी बातें राव अबरा कहकर बेहोश हो गया। शाम को मुझे होश आया और वो काम पर भी नहीं गई। जैसे ही वो होश में आई वो काम पर लग गई। बताया गया कि उनके देर से आने की वजह से इसकी नौकरी और बाकी को बरतरफ कर दिया गया। इसकी तनख्वाह अदा करो और इसे यहाँ से जाने को कहो, ये कहा जाता है। और रियो घर आता है और रोता है। वो रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनकर उदास होती है। जब ऐसा होता है तो उसके अंदर की ताकतें दोबारा पैदा होती है। वो बेदार हुई और उसके अंदर से एक सांप निकला, बाहर आता है और अपने मालिक को काटता है, जिसकी वजह से इसका मालिक भी मर गया। राहो यहाँ है। इस वाकये के बाद नानी बहुत डरी हुई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हर तरफ सांप के काटने की वारदातें हो रही थी। राहो को हर तरफ सांप नजर आ रहे थे। जब इसका भाई इससे पानी मांगने आया तो वो खामोश रहा। वो कुछ समझ ना सका। इसे एक सांप नजर आया, वो राहो के भाई को मारने वाला है। वो इसने सांप को पकड़ा और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इसने सांप को दीवार से मारकर मारना शुरू कर दिया। वो रियो के भाई रियो को बचाना चाहती थी। जब वो यहाँ भी आई तो इसने नानी से ये काम करने को कहा। मैंने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन नानी नहीं रुकी, और अचानक जब इसे होश आया तो इसे मालूम हुआ कि इसके पास है ये सांप नहीं बल्कि रियो का भाई है। वो हिलॉस मैसन की वजह से मारा गया। वो बच्चे को सांप समझने लगी। इसे इस चीज का बहुत दुख होता है। वो पहले भी कत्ल कर चुकी थी। वो इस इल्जाम में पकड़ी गई थी और अब इसके पास वाकई है। इसे कत्ल किया गया। इसकी ज़हनी हालत भी ठीक थी। वो वहां नहीं थी, इसलिए इसने खुदकुशी कर ली। राहुल अब अपनी दादी को मरते देखकर सदमे में है। वो बेहोश हो चुकी थी और जब इसे होश आया वालिद के अंकल सिम तोते के घर में थे, जिन्होंने इसे दिया। ये देखकर वो इसे अपने घर ले जा रहे थे। वो दूसरी बार फिर बेहोश हो गई। मुझे सुनटूट के घर में दोबारा होश आया जहां सुनटूट के थे। बीवी ने इसकी तरफ देखा और प्यार से समझाया, बेटा तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हाँ, ये तुम्हारे वालिद की मलकियत नहीं है। इसके पास खुद बहुत पैसा होना चाहिए। आपके पैसे के साथ एक वो रास्ता जहाँ राब्ता सिखाया जाता है। उन्हें भी समझाता है कि यहाँ जो कुछ भी है ये आपकी वालिदा और दादी की वफात की वजह से हुआ। इसका जिम्मेदार अपने आप को ना समझी। बदरूहों ने इसको हुआ दी है और फिर रात हो जाती है और सत की बीवी सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। रात को सो जाते हैं भाई, जिसने इसे बताया रियो इस नमाज के कमरे से जड़ा हुआ है और अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो इसे निकाल दो। जरूरी है और उसके असासा और सांप वाली के लिए छड़ी जरूरी है जो उसके बाप की ताकत से बुनती है। अगर ऐसा हो जाए तो इसे ये सब संत को बताना चाहिए और संत वो छड़ी लेने इस जगह जाता है। इससे पहले वो इस कमरे में जाता है। छड़ी की तलाश में उन्हें अजीब काला मिला जादुई अशिया पाई जाती है, जिन पर कुछ गैर राब्ता पता चलता है कि पूरी किया धारा सर्वो रियो के वालिद के उस्ताद है। दरअसल मंसूबा ये था कि राहुल के वालिद को कत्ल कर दिया जाए। ये जानने के बाद कि सर्व ने काला जादू किया। अब गुना टॉट इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसने ऐसा क्यों किया ये सुनकर सर्व ने बताया कि कब से रियो के वालिद ने समरी लोगों की मदद करना शुरू कर दी। लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया था। लोग गैर राब्ता, मेरा नाम कम होने लगा और समरी का गलबा बहुत हो गया है। मैं इसका रवादार हूँ। मैं ये नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसे कत्ल करने का फैसला किया। दरअसल मैंने संतवट समरी का मंसूबा बनाया था। चचा नहीं बल्कि सर्व समरी के उस्ताद हैं। राहो जायदाद हड़प करना चाहता था। इसके अलावा जब वो गांव वापस आई तो सारों से मुलाकात हुई। जब इसने इसे पाया तो सर्वों ने जानबूझकर इसे दुआ दी। कमरे में वापस भेज दिया गया ताकि वो उन ताकतों का हिस्सा बने जो बचपन से पहले मौजूद थी। सिंह टॉट में इसने अपनी जान बचाई थी। सच जाने के बाद गुना टूटा लाठी लेकर चला गया। इसकी पीठ रास्ते पर आती है। राहो को थकन के लिए एक कमरा मिलता है। मुझे वहां लाया गया जहां बहुत से थे आदमी थे और उन आदमियों में एक आदमी था। राहियू के वालिद को भी इसी ने मारा था। इसे देखकर लोग नाराज हो जाते हैं और बुरी तवानाइयां इस पर दोबारा काबू पा लेती हैं। इसकी आंखें अजीब लगती हैं और वो पागलों की तरह चीख रही है। खुद औलाद पर हमला करने के लिए उठता है क्योंकि इसने महसूस किया कि सिंह टॉट ने इसकी इस्मत दुरी की है। अब्बा मारा गया है लेकिन यहाँ गुना सच्चा नहीं है।
वो मुझे बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि सारों ने किया था। मैंने आपके वालिद को अपने खाली जादू से मार डाला। रियो चलाया और कहा कि मैंने इस आदमी को बताया, मैंने इस आदमी को देखा जिसने मेरे वालिद को यहाँ मारा था। तो इस बार गुना टॉट ने इस बात का एतराफ किया। वो लड़का मेरा बेटा था और मैं आज 2 साल का हूँ। अभी 1 साल पहले पता चला कि मेरा बेटा आपके वालिद के कत्ल में मदद के साथ, और मैंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। मैंने सिर्फ इस हकीकत को छुपाया और इसीलिए आपके खानदान की बहुत तौहीन की गई। आपके खानदान को बहुत तकलीफ हुई है। तुम्हारी दादी फौत हो गई, तुम्हारा भाई फौत हो गया, और मुझे आज तक इस बात का अफसोस है। रियो का गुस्सा अब भी संतूर पर था। इसने इतना बड़ा सच कैसे छुपाया? तोते को इसकी गलती की सजा देना, वो अपने बेटे को बुरी तवानाई से पालती है और फिर उसका बेटा पालता है और इसे देता है। अजीब आवाजें सुनने पर गुना मारता है। तोते की बीवी इस कमरे में आती है। वो देखती है कि गुना तो पहले ही मर चुका है और वो अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। सबसे पहले अपने बेटे को एक्सरसाइज करके उन्हें होश में लाता है, और जब उनका बेटा वो देखता है कि इसने अपने ही वालिद को मार डाला है, फिर वो इस जुर्म पर पशेमान होकर बखर जाता है। इसके दिमाग को पकड़ लिया था और उसकी वजह से वो खुदकुशी करता है और अपनी जान ले लेता है। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। तोते की बीवी इस सूरत-ए-हाल को भांप चुकी थी। को कंट्रोल करने के लिए दरिया के किनारों अपने तमाम दुख भला कर मुत्तहिद होना जरूरी है। इसके बेटे और उसके शौहर की मौत एक तरफ उन्हें रखने से रियो का इखराज जमना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर से तमाम बुरी तवानाइयों को निकाल दे। आइए इसकी बुरी तवानाइयों को निकाल दे। राहो जिस्म से निकलते ही मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाता है, और अगले दिन हमें सिंटॉट और उसका पता चला राहो को बेटे का जनाजा दिखाया गया है। मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था, लेकिन ये कभी कभार संतवट की बीवी भी जो कि बहुत है। वो एक अच्छी औरत थी, वो रियो से बहुत प्यार करती थी। इसे समझाया कि तुम इस सब के जिम्मेदार नहीं हो। हाँ, इस सब के लिए अपने आप को बुरा मत समझो, यूं समझ लें कि ये सब शैतानी कुव्वतों की वजह से हुआ है, जिसे मैंने एक सिस्टम करके थका दिया, आपके जिस्म से निकाल दिया गया है, और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। सुनटॉट की बीवी ने इसे बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि बुरी तवानाई जिसने आपको दी थी, ये इसने लाहिक किया था जिसने पोज किया था।